شہباز نے لندن سے وطن واپسی کی پرواز پکڑ لی۔ صبح 6 بجے لاہور ایئرپورٹ اتریں گے۔ ہر چیز کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آج نیوز سے گفتگو، کہا احتجاج کا فیصلہ تمام جماعتوں سے مل کر کریں گے۔ وطن واپس نہ آنے کی خبریں پھیلانے والوں کے خلاف قانونی ایکشن کا اعلان۔ پیر کو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلا لیا۔ مہنگائی اور بجٹ پر حکمت عملی طے کی جائے گی۔ شہباز شریف صاحب کو جی آیا نو۔ فردوس عاشق کا ٹویٹ، لکھا 2 ہفتے کے ریلیف کو 2 ماہ کی چھٹی میں تبدیل کیا۔ اس دوران این آر او کی کوشش میں لندن کی سڑکیں ناپتے رہے۔ اسحاق ڈار بیٹے اور داماد کو بھی لے آتے تو قانونی تقاضا پورا ہو جاتا۔ معیشت کا سونامی، اقتصادی بیڑا ڈوب گیا۔ حکومت رواں سال کوئی معاشی ہدف حاصل نہ کر سکی۔ ترقی کی شرح 6.2 کے بجائے 3.3% رہی۔ 9 ماہ میں تجارتی خسارہ 21.3 ارب ڈالر تک پہنچ گیا۔ مہنگائی 7.5% رہی۔ آج نیوز نے اقتصادی سروے کے مندرجات حاصل کر لیے۔ زرعی شعبے کی پیداوار 3.8 کے بجائے 0.8% رہی۔ رپورٹ پیر کو جاری ہوگی۔ عمران صاحب، آپ تمام مضامین میں فیل ہو گئے۔ قومی اقتصادی سروے آپ کی نالائقی کا سرٹیفکیٹ ہے۔ مریم اورنگزیب کا رد عمل۔ وزیر اعظم کو نون لیگ کی اقتصادی سروے رپورٹ 2013-14 بھجوا دی۔ پڑھیں، معلوم ہو جائے گا منتخب اور سلیکٹڈ حکومت میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اپنی بیماری سے نہیں، مہنگائی پر عوام کے لیے پریشان ہوں۔ نواز شریف کی مریم نواز سے گفتگو، عوام دشمن پالیسیوں کے خلاف ہر فورم پر آواز اٹھائی جائے۔ صاحبزادی کو ہدایت۔ داماد صفدر اور ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان نے بھی ملاقات کی۔ مریم جب بھی میاں صاحب سے ملی ان کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی۔ فواد چودھری کا ٹویٹ، لکھتے ہیں آسان حل یہ ہے، تینوں بچے ابو کے پیسے واپس کریں، ابو وہ پیسے عوام کو واپس کریں، باقی زندگی ہنسی خوشی گزاریں۔ فردوس عاشق عوان کا رانا ثنا کو 2 ارب ہرجانے کا نوٹس۔ باجی آپ تو غصہ کر گئیں، آپ کے باس کی نالائقی کا پوچھا تو غصہ کر گئیں، عزت سے باجی کہا تو بھی غصہ کر گئیں۔ لیگی رہنما کے طنز، کہا ابھی تو کرپشن اور نااہلی سے متعلق بہت سوالات کرنا ہے۔ پاکستان کی سفارتی محاذ پر بڑی کامیابی، وزیر اعظم عمران خان کی روسی صدر پیوٹن سے ملاقات طے پا گئی۔ ملاقات 14 جون کو بشکیک میں ہوگی۔ روسی سفارت خانے نے آگاہ کر دیا، 2 طرفہ تعلقات، افغان امن اور عالمی امور پر بات ہوگی۔ وزیر اعظم روسی صدر کو دورہ پاکستان کی دعوت بھی دیں گے۔ وزیر اعظم کا نتھیا گلی اور ایوبیہ کو بڑا سیاحتی مرکز بنانے کا فیصلہ، نئے سیاحتی مقامات کے لیے سروے کی ہدایت کر دی۔ نجی سیکٹر کے اشتراک سے 3 اسٹار ہوٹل، فوڈ اسٹریٹ، سینما اور نئی پارکنگز بنانے کا ٹاسک بھی دے دیا۔ بجٹ میں آبی وسائل کی ترقی کے لیے 190 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز۔ 200 ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پر 54 ارب رکھنے کی سفارش۔ نیلم جہلم کے لیے 34 ارب اور دیامیر بھاشا کے لیے 20 ارب رکھے جانے کا امکان۔ نئی ملحق وی آئی پی کلچر کے خلاف میدان میں آ گئے۔ وزراء وی آئی پی کلچر کو فروغ دے رہے ہیں، جہاں جاتے ہیں پولیس اسکواڈ ساتھ ہوتا ہے۔ یہ روش وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت کے خلاف ہے۔ شاہانہ کلچر ختم کرنے کی اپیل کر دی۔ عوامی نیشنل پارٹی نے بھی چپ کا روزہ توڑ دیا۔ مہنگائی کے خلاف آج خیبر پختونخوا میں احتجاج کا اعلان۔ صدر اسفندیار ولی چارسدہ میں عوامی جلسے سے خطاب کریں گے۔ سربراہ جعفریہ الائنس علامہ عباس کمیلی کراچی لیاری میں سپرد خاک۔ نماز جنازہ میں سیاسی، سماجی و مذہبی رہنماؤں کی شرکت۔ وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ اور گورنر سندھ کا علامہ عباس کمیلی کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار۔ دینی خدمات پر مرحوم کو خراج عقیدت۔ رتو ڈیرو میں HIV بے قابو، مزید 10 افراد میں وائرس کی تصدیق ہو گئی۔ تعداد 761 تک جا پہنچی، 623 بچے شامل۔ آج 141 افراد کی بلڈ اسکریننگ کی گئی۔
बलूचिस्तान पर एक और आफत टूट पड़ी। खारान और वाशक में टिड्डी दिल ने हमला कर दिया। टिड्डियों का लश्कर प्याज, कपास, गंदम, तरबूज, खरबूजे की फसलें चट कर गया। करोड़ों रुपए का नुकसान। हुकूमत कोई इक़दामात नहीं कर रही, जमींदारों की दुहाई। बैक वक्त 5 फूल खिल उठे, घर का चमन महक उठा। करक में खातून ने 5 बच्चों को जन्म दिया। डॉक्टरों का कहना है कि तमाम लड़के सेहतमंद हैं। वालिद गुल गनी का इजहारी तशक्कुर। पैदाइश तख्त नुसरती के इलाके गंडेरी खटक में हुई। ईद गई, वीकेंड आ गया। लाहौरियों ने फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया। दोस्तों से मिलने के बहाने खानों पर खूब हाथ साफ किया। रावलपिंडी की फैमिलीज ने भी फूड स्ट्रीट में बैठक लगा ली। आगाह कर दिया, मुलाकात 14 जून को बिश्केक में होगी, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल, अफगान अमन अमल और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल होगा। मजीद बता रहे हैं नवीद अकबर। नवीद अकबर, अच्छी खबर है, पाकिस्तान को एक और सिफारती महाज पर कामयाबी मिलने जा रही है। क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात के लिए ये मुलाकात बहुत अहमियत की हामिल है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और मिर्जा इमरान खान के दरमियान बिश्केक किर्गिस्तान में 14 जून को ये मुलाकात तय पाई है। 13 जून से शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास हो रहा है किर्गिस्तान के शहर बिश्केक में। वहाँ पे ये मुलाकात तय पाई है, जो दूसरे दिन हो सरबराह इजलास के दूसरे दिन होगी। मुलाकात के लिए आधे घंटे से ज्यादा का दौरानिया जो है वो रखा गया है पाकिस्तान में रूसी सफारत खाने ने। तो इस हवाले से बहुत शुक्रिया नवीद अकबर, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। एक और अहम खबर आपको देंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ वतन वापस आने के लिए लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से रवाना हो गए हैं। शहबाज शरीफ ने वतन रवानगी से कबल आज न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की। शहबाज शरीफ का कहना था कि हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का फैसला तमाम जमातों से मिलकर करेंगे। उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने वाज़े कर दिया कि वो हर चीज़ का सामना करने के लिए तैयार हैं। वतन वापस आने की ना आने की अफवाहें फैलाई गईं, ऐसे अफराद के खिलाफ चाराजोई का हक रखते हैं। मामून खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान ने तंज भरा ट्वीट दागते हुए शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। कहा, जी आया नू। शहबाज शरीफ 2 माह बाद वापस आ रहे हैं। इस अरसे में वो एनआरओ की कोशिश में लंदन की सड़कें नापते रहे। शहबाज शरीफ वापसी पर इसहाक डार बेटे और दामाद को भी ले आते तो कानूनी तकाजा पूरा हो जाता। शहबाज शरीफ जिस बर्क रफ्तारी से चलते फिरते नजर आए, लगता नहीं कि उन्हें कोई तकलीफ है। उम्मीद है कि अब वो बैरून मुल्क नहीं जाएंगे, अदालतों में बाकायदगी से हाजिरी देंगे। हुकूमत को टफ टाइम देने का टास्क सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ कमर कस रहे हैं और पीर को मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया है। इजलास पार्लियामेंट हाउस में अपोजिशन चैम्बर में होगा। शहबाज शरीफ ने 12 जून को अपनी पार्टी की इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का इजलास भी तलब कर लिया है। इजलास में मुल्क की माशी सूरत हाल पर तफसीली गौर होगा। महंगाई, बेरोजगारी, डॉलर की कीमत समेत दीगर माशी उमूर ज़ेर गौर आएंगे। बजट के हवाले से भी मुशावरत होगी। मुख्तलिफ तजावीज़ मुरतब की जाएंगी, जबकि अवाम दुश्मन बजट के खिलाफ मुज़ाहमत के हवाले से हुकूमत के खिलाफ हिकमत अमली तैयार की जाएगी। महंगाई की मौजूदा सूरत हाल पर जेल में कैद नवाज शरीफ को भी तशवीश हो गई। नवाज शरीफ कहते हैं कि अपनी बीमारी की इतनी फिक्र नहीं जितनी अवाम पर महंगाई का बोझ डालने की है। हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसियों ने महंगाई का बोझ डाल दिया। नवाज शरीफ ने हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ मरियम नवाज को हर फोरम पर आवाज़ उठाने की हिदायत कर दी। कोट लखपत जेल में नवाज शरीफ से उनकी बेटी मरियम नवाज की मुलाकात हो गई। मरियम नवाज वालिद के लिए ईद की मुनासबत से खुसूसी खाना भी साथ लाई। मरियम नवाज ने अपने वालिद को ईद से चंद रोज कबल पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे से मुतालिक आगाह किया, जिस पर नवाज शरीफ का कहना था, इतनी अपनी बीमारी और कैद की फिक्र नहीं जितना अवाम पर महंगाई का बोझ डाले जाने का दुख है। नवाज शरीफ ने महंगाई की इस मौजूदा सूरत हाल पर मरियम नवाज को हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ हर फोरम पर आवाज उठाने की हिदायत की। नवाज शरीफ ने मरियम नवाज को कहा कि वोट की इज्जत और अदलिया बचाओ की भरपूर तहरीक चलाएं।
अपोजिशन की APC में शिरकत भी यकीनी बनाएं। हुकूमत 9 माह में इक़्तिसादी तरक्की के अहदाफ हासिल करने में नाकाम रही। इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट में हुकूमती कारकर्दगी की ये सारी कहानी सामने आ गई। मौशी तरक्की की शरह 6.2 के बजाय 3.3% रही। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुआशी अहदाफ में नाकामी और महंगाई का सुनामी, यह है PTI सरकार के पहले साल की कहानी। डगमगाती मईशत का भंवर हुकूमती पॉलिसियों को बहा ले गया। रवा माली साल पाकिस्तान कोई मुआशी हदफ हासिल न कर सका। इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक मुआशी तरक्की की शरह 6.2 के बजाय 3.3% रही। ज़राई शोबे की पैदावार 3.8% के बजाय महज 0.8% रही। सनती तरक्की 7.6% के बरक्स 1.4% तक महदूद रही। हाउसिंग सर्विस में भी तरक्की 4% के मुकर्ररा हदफ के बराबर रही। जनरल गवर्नमेंट सर्विस में 7.2% के बरक्स 7.9 के हिसाब से इजाफा हुआ। हुकूमत की मुआशी टीम के कप्तान डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख पीर को इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट जारी करेंगे। इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट वज़ीर आज़म की नालायकी का सर्टिफिकेट है। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब बरस पड़ी। कहा, इमरान खान मुल्क की तरक्की के तमाम मज़ामीन में फ़ेल हो गए हैं। मरियम औरंगज़ेब ने वज़ीर आज़म को नून लीग की इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट भी भिजवाई। कहा, इमरान साहब ये रिपोर्ट पढ़ें ताकि मालूम हो कि मुल्क की खिदमत किसे कहते हैं। रिपोर्ट पढ़ें ताकि मालूम हो कि सिलेक्टेड और मुंतखब हुकूमत में क्या फ़र्क होता है। आबी वसाइल के किस मंसूबे के लिए कितने फंड्स मुख्तस किए जा रहे हैं, आज न्यूज़ ने तफसीलात हासिल कर ली। आइंदा बजट में डैमों की तामीर और दीगर आबी वसाइल की तरक्की के लिए 190 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। अहम खबर शामिल करेंगे। पंजाब हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के साबिक सीनियर वज़ीर अब्दुल अलीम खान को दोबारा सूबाई काबीना में शामिल करने का फैसला कर लिया है। अलीम खान को दोबारा महकमा मनसूबाबंदी और तरक्यात और बल्दियात का कलमदान सौंपा जाएगा। ज़राए के मुताबिक अलीम खान सूबाई सालाना मीज़ानिया असम्बली में पेश होने से कबल अपने ओहदे का हलफ उठा लेंगे। अब्दुल अलीम खान की ऑफशोर कंपनी केस में नैब ने 6 फरवरी को तहकीकात के लिए गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उन्होंने वजारत से इस्तीफ़ा दे दिया था। मामून खुसूसी फिरदौस आशिक अवान और लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह के दरमियान लफ्जी जंग अदालत जा पहुंची। फिरदौस आशिक ने 2 अरब हर्जाने का नोटिस भेज दिया। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि फिरदौस बाजी से करप्शन का जवाब